मुमलिकत खुदादाद में आप पर एक और टैक्स लगा दिया गया है। पंजाब की मलका मैडम सीएम ने मंजूरी दे दी है कि अब आपके घरों पर, आपकी दुकानों पर, कारोबार पर, सनत पर, छोटे बड़े हर तरह के घर पर 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये का कूड़े का टैक्स लगेगा। ये कूड़ा वो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यानी अब आपके घर के बाहर से सफाई हो या ना हो, लेकिन आपको कूड़ा टैक्स अदा करना होगा। जैसे बहुत से टैक्स आप बिजली के बिल में अदा करते हैं, खाने पीने की अशिया पर अदा करते हैं। पाकिस्तान में अब दो ही चीज़ें मुफ्त रह गई हैं, एक सांस लेना और एक ज़िंदा रहना, क्योंकि आप मर जाएंगे तो कब्र के लिए भी आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं नया नाफिज होने वाला कूड़ा टैक्स और इसका तमाशा। ताड़े तो नवा टैक्स लग गया, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਉਹ ਤਾਂ ਲਾਣ ਲੱਗ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਅਜੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਇਦੋਂ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ, ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਵੇਲਾ, ਸਾਰਾ ਗੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੀ ਜਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छे खुश आदमी हो, अमीर आदमी हो, सारे ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ठंडा पानी नहीं मिला। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ। कौन थे? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ओहो, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? यानी सरकार पानी से भी टैक्स लाएगी। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗ रह की गया ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, कहते ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਨਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨਾ मरन दे है ना, इधर टैक्स कबर नहीं कढ़ानी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ। जो पैसे दे के निकलनी है। ਆ ਲੋਕੀ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੁਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। अब थोड़े परेशान नाराज हो गए हो। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ। ਜਾਓ ਕਿਹੜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਲੋਕੀ ਮੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਗਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਮਲਕਾ पंजाब मैडम सीएम ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਕੂੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਚੁੱਕਣ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, MCL ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ। तो उस तो बाद फिर निज़ाम इस तरह ही है। लेकिन ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੀ ਕੂੜਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ, ਗਲੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕੂੜਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਹਿਬ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਰੋਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, तो ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱलो तो फिर ਅਸੀਂ आए। ये सूरत हाल है जी कि टैक्स पर टैक्स लगेगा और सरकार आपको सिर्फ तसल्ली देगी। तो आप ये शुक्र करें कि तसल्ली पर टैक्स नहीं है। आपने तो विंटेज गाड़ी रखी है, ठीक है जी जनाब, विंटर गाड़ी रखी है जी, दादे परदादे की निशानी ਲਈ ਫਿਰਨੇ ਆ। अच्छा जी, हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੋ ਜੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਜੀ। ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ। ਟੈਕਸ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬਸ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨੋਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਬੱਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਕੂਮਤ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰਾਹਾ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਰਾਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਡੈਮਾਂ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਲਾ ਖਤਮ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਘਰ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਵਾਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਲਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਥੱਲਿਓਂ ਟੂਟੀ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰ ਲੜਾਈ। ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕੂੜਾ ਘਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਦਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਭਾਣ ਕੂੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਵਾਲੇ 10 ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਛੱਟਾ ਲਾਣ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਤੇ। ਗਰਮੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਲੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਗਰ 50,000 ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 30,000 ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ 20,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਹੀ आना कूड़ा चुकन। कैसी हैं आप? शुक्र है खैरियत से? हाँ जी। आपको नई खबर मिली है? क्या? मलका पंजाब को जानती हैं आप? मुझे कुछ नहीं। मैडम सीएम मरियम बीबी, मैडम सीएम ने आप पे नया कूड़ा टैक्स लगा दिया है। कहाँ पे? घरों पे हर घर से 300 रुपया, बड़े घर से 500, 2,000, 4,000 कूड़े का टैक्स लेंगे अब आपसे। क्या सूरत हाल है? आप मुझे ये बताएं कि हालात किस तरह के हैं? बहुत खराब है। बिल आया घर का? जी बिल आया बिल? जी। कितना? कभी 10 आता है, ठीक है, कभी ज़्यादा आता है। कभी ज़्यादा आ जाता है। हाँ, बिल्कुल, अब आप पे कूड़े का भी टैक्स लगेगा, कूड़े का भी टैक्स लगेगा। चाहे वो आपके घर के बाहर से उठाया जाए कूड़ा या ना उठाया जाए, पैसे आपने देने हैं। सही बात है। तो मरियम बीबी को आपसे वोट लेने आई थी, आपसे को वोट मांगने आई थी मरियम बीबी? कोई नहीं, हाँ वोट तो मांगती है। लेने आई थी आपसे वोट? हाँ आपने वोट दिया फिर? दिए। तो आपकी उम्मीदें जो थी उनसे पूरी हुई? खुश हैं आप? मैडम सीएम की सरकार से आप खुश हैं? मेरी बात सुने, जो किसी का काम पूरा नहीं करते तो फिर उन्होंने क्या कहना? देखे ना आप कि रोटी खाने भी इस वक्त मुश्किल हो गई। जो बुजुर्ग आदमी है वो घर में बैठा है, कैसे पूरा करेगा? ये आपकी वो शुगर वाली जी है? जी, सेल्फ हुआ किया ये। तो कितने का सेल आया? 30 रुपए। सस्ता सस्ता तो और है अभी, ये तो सेल तो सस्ता ही है। लेकिन वो जिस स्ट्रिप से आप चेक करती हैं ना शुगर, जी, जी। वो महंगी होगी है, उस पर भी टैक्स है। अच्छा, आप बिल्कुल थोड़ी ठीक कम है। चेक किया करें, रोज चेक करती हैं? हाँ जी। ये देखें ना, कभी 8 दिन के बाद, कभी 4 दिन के बाद शुगर ज्यादा ना। हाँ, क्या कह रही हैं बहन? मैंने कहा सोने पे भी टैक्स लग जाएगा। बस वही रह गया है, तो फिर सरकार को कहीं ये भी लगा दे। वो भी लगा देंगे, आजकल की बात है। नहीं, सवाल ये किस चीज का कूड़े का टैक्स लगाया है? कूड़े का आगे टैक्स। कम है, जो टैक्स हैं जो लगाए हुए हैं उन्होंने वो कम है। ये पूछे ना आप मलका पंजाब से पूछे, मैं उन्हीं से ही पूछ रही हूँ। आपकी तो उसके दोस्त भी उनसे हों, पूछ रही हूँ। आपकी दोस्त भी हो सकता है वो, कभी आपको मिलने आई है यहाँ पे? नहीं, हम नहीं? यहाँ पे भी नहीं आए, हम भूत किराए पे रहते हैं और घर को खाते नहीं है, 2 टाइम 1 टाइम खाते हैं। घर का किराया देते हैं, बिल इतना कल बिल आया 17,000 रुपये बिल आया और चल क्या रहा है हमारा, सिर्फ पंखा चलता है घर में या फ्रिज चलती है। 17,000 रुपये बिल आ गया है। जी, और अब आप कूड़े का टैक्स बता खाना रहे हैं। आपने 3 टाइम से 1 टाइम कर दिया। जब पूरी तनख्वाह 25,000 एक इंसान की तनख्वाह है तो उसने बिल किराए देने हैं, क्या खाना है, 2 बच्चे हैं मेरे छोटे, उनका खर्चा करना है या क्या खाएंगे हम, और बिल किराए देंगे ना फिर उन्हें को खुद तो भूखे। मैंने अपनी बेटी को उठा दिया स्कूल से, खत्म कर उठा दिया। फीस नहीं थी, एडमिशन नहीं करवाया उसने, केजी में अव्वल आई है, वो मेडल A ग्रेड में आया उसका, मैंने उसको आगे एडमिशन नहीं करवाया। केजी में ही उसने मेडल ले लिया है? जी हाँ जी, मेरी पढ़ने- बच्ची इतनी पढ़ने इंटेलिजेंट वाली है बच्ची है वो तो बस हालात साथ नहीं ना दे रहे। 25,000 तनख्वाह में क्या गुजारा होगा आप बता दें मुझे। आप गुजार कर सकते हैं, घर भी मैनेज करें, घर का खर्चा भी, राशन भी पूरा करें, उसके बाद जो बच्चों के खर्चे हैं वो पूरा करें, क्या क्या पूरा करेंगे आप 25,000? आपका जब आप खुद पढ़ रही थी स्कूल जी। कॉलेज, आपका क्या ख्वाब था, क्या बनना चाहती थी आप? मेरा ख्वाब तो बहुत था कि मेरा ख्वाब यही था कि मैं टीचर बनूं, ठीक है। क्योंकि मुझे शौक था टीचर बनने का। तो फिर पूरा हुआ ख्वाब? पूरा क्या ख्वाब होना है, हालात पर तो मैं जब 6 बहनें हैं हम, मेरे अब्बू नहीं है ना आई, मेरे भाई हैं, तो मैं 3रे नंबर वाली हूँ। मेरी शादी दरअसल जल्दी हो गई थी, ठीक है। मेरी शादी को फिर 10 साल हो गए हैं, दो मेरे माशाल्लाह। बच्चे हैं। तो फिर वालिदैन तो कोशिश करते हैं कि अपना जो ख्वाब रह गया वो बच्चों में पूरा कर लें। कैसे पूरा करें आप समझा दें, कोई हेल्प करेगा हमारी? ये करेगी हेल्प जो खाना भी छीन लिया जिन्होंने हमसे, ये हेल्प करेंगे, ये बच्चों को, ये हमें विश्वास दिलाएं ना कि हम आपके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो शायद जो हमने ख्वाब पूरा नहीं किया वो कर लें वो।
नहीं वो मसला ये है कि हमने गंद इतना फैलाया हुआ है, हम अपना जगह साफ़ ही नहीं करते। वो कहते हैं जब कूड़ा उठाने कूड़े आएंगे, वाले को पैसे देते हैं हम, 200 रुपये महीना वो लेता है, हर हफ्ते को 50 रुपये लेके जाता है। जब रोटी के लिए पैसे मांगता है 200 रुपये, हम खुद चाहे खाएं ना या ना खाएं, उनका ख्याल रखते हैं। वो जब 200 रुपया महीना देते जी, हैं, देते फिर हैं। हर हफ्ते 50 रुपये अलग से। नहीं वही। यानी कि वही है। ठीक है। फिर वो एक्स्ट्रा मांग ले कि जब मैंने कभी- खाना खाना है, फिर 100-50 जितनी हमारी वो हैसियत भी हो हम देते यानी हैं। महीने का 500 रुपया तो ये हो गया फिक्स, जी ये देते देते हैं। तो फिर हैं। किस चीज़ इसके का बाद भी टैक्स कूड़ा है? उठाता है कि नहीं उठाता? उसकी जब मर्जी होती है उठाता है, जब नहीं मर्जी होती नहीं उठाता। आज भी गली में कूड़ा आया, उसने नहीं उठाया, आज अपनी मर्जी से वो नहीं आया, आया ही नहीं। नहीं आया। तो अब- साथ वाले घर वालों ने उनको पैसे नहीं दिए हफ्ते के, तो कूड़ा उठाने नहीं आया। यानी एक घर ने पैसे नहीं दिए तो अब पूरी गली जो है जी वो कल हमसे पैसे लेके गया वो। बात सिर्फ इस टाइम ये हो रही है कि ये तो क्या 500 चाहती वो और है 300 हुकूमत आप पर उनसे? और लग जाएगा। हमसे ये गलती हो गई है कि हमने इस दफा नवाज शरीफ को वोट दे दिया या मरीम नवाज को दे इसमें दिया। गलती कहाँ हो गई? तो फिर ये क्या, आपके वोट हमारी से- तो रोटी छीन गई है भाई। आपके वोट से मैडम सीएम मलका पंजाब बन गई हैं, बन गई है, लेकिन हमें उसका क्या बेनिफिट तख्त है? लाहौर पर आकर बैठी हैं। हमें क्या बेनिफिट है ये बता दें, क्या बेनिफिट एक है? खातून सीएम बन गई, आप खुशी नहीं इस पे? खुश हैं, दिली खुशी है, लेकिन हमारे लिए उन्होंने क्या किया ये बताएं। हाँ, ये एक सवाल है। ये सवाल है, ये आप उनको बता सकते हैं मेरा सवाल, ये या उनसे जवाब इधर दे देखें, सकते हैं। इधर जी, देखें। मैं देख रही हूँ। वो शायद कहीं आपको देख लें, देख उन्हें लें। उन्हें उन्हें बताएं और सवाल अपना उनके मेरा सामने सवाल रखें। यही है कि हमें बहुत खुशी हुई है आप सीएम बन गई हैं। पाकिस्तान की पहली खातून सीएम। जी, लेकिन हमने तो आपको बना दिया, लेकिन आपने हम लोगों के लिए क्या किया? हमारी तो रोटी भी छिन गई है, हम तो रोटी भी अपने घर की पूरी नहीं कर पा रहे हैं। मेरी बेटी है, मैंने उसको स्कूल से उठा दिया है, हम खाना भी घर का पूरा नहीं हो रहा, बिल किराए देते हैं, बिल इतने आ रहे हैं बेफजूल, जो हम ये टैक्स पे टैक्स डाल रहे हैं बिला वजह। या तो फिर खुद ही जहर दे दें हमें, जिए ही ना, कोई होगा ही नहीं तो टैक्स किस पे डालेंगे? आप इस बात का मुझे जवाब दें। मरने में भी टैक्स है, कबर के पैसे नहीं निकलने बहन। बस फिर क्या करें आप बता दें। क्या करें भाईजान? टैक्स दें और क्या करें? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਹੁਣ ਮੇਰਾ आप- ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ तरक्की कर सकता, जैसे ये करना चाह रहे हैं ना, कैसे करेगा फिर ये समझाएं। ਭਾਈਜਾਨ जब खजाने में महंगाई खत्म करें। पैसे आएंगे तो तरक्की होगी पहले ना। 1000 रुपए में बहुत बरकत होती थी, अब 1000 का नोट ऐसे जैसे 100 रुपया पता ही नहीं चलता। नहीं चलता। महंगाई महंगाई पे- कम करें। महंगाई पे मैडम सीएम ने स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया। कब लिया भाई, कहाँ लिया? मैं तो उन्होंने नजर मीटिंग आई। बुला ली, काबीना का बुलाई है? इजलास बुला लिया आज ही। वो कह रही है मैं चले मेरा मैसेज अगर वो सुन रही है मेरे तो प्लीज उनका मैसेज सुने। वो कह रही है जितनी महंगाई है ये मसनूई महंगाई है, असल में नहीं है, ये लोगों ने खुद से की हुई है। ਇਹ ਮਸਲਾ तो फिर ये लोग ही दुश्मन है एक दूसरे के, यही बात हो गई ना। ये दुश्मन है। ਲੋਕਾਂ ने एक दूसरे के हम ही दुश्मन है। फिर अगर इन्होंने महंगाई की हुई है तो फिर उन्होंने हुकूमत ने नहीं की, आपकी बात मान ली है। नहीं मेरी नहीं मैडम सीएम की माने। जी चल मैं तो आप जैसी अवाम हूँ। चले उनकी मान ली। आपने कहा है ना ये कि इन्होंने महंगाई की हुई है, ये लोग हैं जो दुकानदार हैं, तो फिर एक दूसरे के हम खुद ही दुश्मन है ना। वो यही बता रहे हैं कि आप लोग आपस में दुश्मन है, खुद ही बैठ के मामला बस सॉल्व कर लें। फिर क्या होगा? साढ़े दिन रहना, जागते रहना। ओहो, ये ऐसे कुछ भी नहीं होना भाई। एंड क्या होगा, जितने दिन हो गए खा लेंगे उतने दिन, नहीं तो फिर बाद में मर जाएंगे, यही है ना। मुश्किल ये हालात बिल है। किराए पे ही जी रहे हैं। वो तनख्वाह क्या है? एक तो पाकिस्तान में ना मजदूर का तनख्वाह नहीं देते उसकी। एक कम जो उसकी- से कम 37,000 है। नहीं 25,000 तनख्वाह है, 20,000 रुपया क्या नाम है महीने बाद मिलता है, 200 रुपये रोज का, ओ 100 रुपये रोज का, 100। और करो। तो ठीक क्या है। गुजारा होगा? मैं क्या उसमें- 9,000 रुपये मेरा बिल किराया है घर किराया। का, और बिल अब 17,000 बिल आया, कहाँ से भराना मैंने? 17,000 बिल आ गया। पूरा महीना खाना कहाँ से? 9,000 रुपया जो है वो घर का किराया है, बच्चे हैं, अखराजात हैं, ऐसे में आपने कूड़े का टैक्स भी देना है अब। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿੱਤਾ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕੂੜੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ- ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਾਈ ਜੋ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਨਾ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਅਗਰ ਗੰਦਗੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, और ਹੁਣ कोई आएगा मेहमान तो कोई अच्छे तरीके नाल कहेगा कि मैडम- यार बंदे अच्छे ने। ਮੈਡਮ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ ਕੋਈ ਸੜਕ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੂੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਡਮ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਸਾਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਿੱਲ ਦਿਓ,
ਬਿੱਲ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਦਈਏ? ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਏਸੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ 4 ਏਸੀ ਲਾਏ ਹੋਣ ਅੰਦਰ। ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਵੋ। देखो मैडम सीएम ने कहा कि सड़कें साफ होनी चाहिए ने। उमरान हाँ आया, उन्हें आके क्या जी मैं मकान देंगा, वो करांगा, वो करांगा। 1 करोड़ नौकरी, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख कर। और मैं ड्राइवर हाँ, मेरे को लाइसेंस है, मैं कहना मनु नौकरी देन, मनु क्यों नहीं देंदे पे? ये गल्लां ने सारियां करन वालियां, जिन्नियां मर्जी करिए वो नहीं समझ आ रही। ਤੁਸੀਂ ਮੈਕ ਫੜ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਵਾਮ ਆਸੇ ਤੇ ਯਾਰ ਵਾਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਈਏ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ 12000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ એનર્ਜੀ ਸੇਵਰ। 12000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਮਕਾਨ ਦਾ। 24,000 हो गया ਹੈ ਜੀ। ਰਿਸ਼ਕਾ ਮੈਂ ਚਲਾਨਾ, ਸੁਹਾਰੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਹਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹਾਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨਾ ਤੇ ਕਦੀ ਗਰੀਬ ਆਮ ਦਾ ਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ। नहीं ताड़े हालात तो कायदे मोहतरम बड़े मियाँ साहब बड़े परेशान ने। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਐਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। 37,000 रुपया। ਇਹ ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। 37,000 ਦਾ ਬਿੱਲ। 37,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 37,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਵੇਚੋ, ਬਾਹਰ ਵੇਚੋ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਹੈ। 201 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 10,000 ਬਿੱਲ ਹੈ। 201 ਯੂਨਿਟ ਦਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਇਆ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? बड़े मियाँ ਮਰੀਮ साहब ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੀ, 300। 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਾਂਗੀ। ਇਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ? ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਰੇ, ਵੇਚੇ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਵੇ। नहीं वो घर ਤੇ ਹੁਣ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਿਹਦੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹ ਸੋਲਰ ਲਾਇਆ, ਸੋਲਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੂਰਜ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਐਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਸੂਰਤ ਮੁਫਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜੋ ਹੈ। ਲੋ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ। ਲੋ ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਯਾਰ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ आप ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾ ਕੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੰਡਨ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਸਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੋਟ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਾਇਦੇ ਰੀਟ मोहतरम ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं अजय नहीं जा रहा ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? हुकूमत चला रहे ने बैठ के। ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਤੇ ਸੋਚਣ। ਐਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਉਹ। ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੇ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਜ਼ਾਕ- ਹੋਏ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਇਹ ਜਾਣ ਬਿੱਲ ਯਾਰ। ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀ ਛੱਡੋ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਟੈਕਸ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨੇ। टैक्स है जी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जीएसटी, इनकम जी। टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर किधर- टैक्स, यानी एक्स्ट्रा टैक्स है इजाफी, फर्दर मजीद इजाफी टैक्स। उनका नाम कोई नहीं हैगा। ਜੋ ਟੈਕਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਆਣਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ- ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਬੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਦੋ ਖਾਨੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਏਗਾ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੈ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਪਰਚੀ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਟਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ? ਇਹ ਕੂੜੇ ਦੀ। 12,000 रुपया 6 ਹਾਂਜੀ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ यानी हर महीने 2,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਹੀ। ਤੇ ਸਫਾਈ ਸ਼ਫਾਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਫਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਦਿਖਾਓ, ਇਧਰ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੈ। ਐਸੇ 2,000 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ 2,000 ਦਿਓਗੇ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ। ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ 37,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ 37,000 ਆਂਦਾ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। 37,000 ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਏ ਫਿਰ। ਦੋ ਕੰਮ करे ने। बिल आया, दो काम करे ने। एक बिल देख के बंदा परेशान ਹੁੰਦਾ है, ਹਾਂਜੀ। दूसरा वो पैसे जमा करके बिल जमा करांदा है।
ਜਾਂ ਫਿਰ परेशान मियाँ साहब हो रहे ने उसी बिल जमा करा दो ਕਟੋਰਾ ਫਾੜਨੇ ਆ ਪੀਲੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਣੇ ਯਾਰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਲਾਂ ओ नहीं यार मंगना थोड़ी है ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਆਵਾਮ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਗਿਰਵੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ गुजरांवाला च माँ ने अपने इलाज वास्ते पैसे जमा किए सा ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮਾ ਕਰਾਇਆ वो बिल जमा करा के आप खुदकुशी कर ली यार ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਘੁੰਮਦੇ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੁੰਮ ਜੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ आवाम के दिलों की धड़कन मियां नवाज शरीफ ਝੂਠ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ आवाम के दिलों के वजीर आजम ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਡਮ ਸੀਐਮ ਓਹੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਏ ਤੇ ਸਰ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਿੱਲ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਓ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਕਜੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਏਗਾ ਉਹ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕੂੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆੜਕ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿਟਾਸ ਕੋਈ ਆ ਇੰਨਾ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਫਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੇਖੋ ਸਹੀ ਭਾਜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ दरवाजे में वो भाई ऐसे साफ दरवाजे हैं सवाल ये है कि 13 तरह के टैक्स इस बिल में है एक टैक्स और सही लेकिन अगर इस टैक्स से आवाम के हालात तब्दील होने हो तो शायद ये भी खुश हो जाए लेकिन हालात भी वैसे ही हैं और कारोबार भी वैसा है एक ब्रेक लें हमारे साथ रहें ये जो आपने पूरा कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है देखें वो पूरी इमारत कूड़े में तब्दील हो गई है हम दो फिर टैक्स दो फिर लग गया टैक्स कूड़े पे लग गया जरूर नहीं हम चंगे रहे हो 2000 रुपया महीने का लग गया हाँ जी उसनों क्यों नहीं लगा तो ये बिजली महंगी है राखी महंगी नहीं मुझे ये बताएं कि ये कितनी कुछ देर से यहाँ कूड़ा जमा हुआ है ये बड़ी देर से काफी देर तक साड़ी होश तो पहले से ऐसे ही है ऐसे नहीं है नहीं उठाने कोई नहीं आता कोई उठाने आती है अच्छा कभी जब कोई कहते हैं फिर बिठाने आती है ये आएंगे बोलेंगे ले जाएंगे फिर आएगा फिर कूड़ा इधर ही रहेगा से नहीं मुझसे के लिए साफ नहीं होता नहीं साफ नहीं होएगा ये किस मौके पे साफ होता है ये जो हाँ जब ट्राली को आएगी है बिठाने आएंगे कौन आएगा ट्राली लेके आएंगे वो कितनी देर बाद वो उनकी ड्यूटी लगी हुई है कोई हफ्ते बाद महीने बाद नहीं हफ्ते बाद महीने बाद नहीं है दूसरे दिन वो ट्राली आती है एक छोटी ट्राली आएगी एक बड़ी ट्राली आएगी ये साफ कर देंगे सारा ये साफ कर जाएंगे फिर साफ कर जाएंगे फिर आएगा वो फिर- साफ करके जाएंगे फिर आएगा तो फिर ये आप लोग जो यहाँ रहते हैं आप ही डालते हैं यही है सब घर वाले यही फेंक के जाते हैं सब तो ये तो फिर आपकी जिम्मेदारी हुई ना नहीं जिम्मेदारी ना आप इधर बैठ जाए इधर फिर आएगा तुम ऐसे बैठे होगे ना डंडा लेके भी बैठोगे फिर भी कूड़ा इधर आएगा तो क्या तरीका होना चाहिए फिर ये बताएं तय तरीका हो जाए ये डालो खत्म कर दो उसको ये तो किसी की प्राइवेट जगह नहीं है हाँ नहीं काफी जगह वो काफी जगह ये हाँ। अच्छा ये वो काफी जगह है हाँ खत्म कर दो ठीक है तो ये सूरत हाल है हाँ और वो दिखाएं जी वो अंदर कोई मजदूर आदमी वो अपना गत्ता इकट्ठा कर रहा है हाँ बिल्कुल वो अपने बच्चों की रोजी रोटी इकट्ठी कर रहा है एक नहीं है ये इधर कितनी है जिसकी रोटी इधर से लगी है वो छोटियां ट्रालियां आती हैं चूड़ा आएगा छोटियां ट्रालियां लेके वो फेंकेगा उधर से फिर निकालेंगे बेचारे बकाया वो इधर ही पड़ा ये लाहौर को तो वो छोटे मियाँ साहब पेरिस बना गए थे वो ऐसा पेरिस बना के गया क्या बात है ऐसा पेरिस में इतना कूड़ा इकट्ठा किया है आपने पेरिस की गलियां देखी ये हैं पेरिस ये देखो ये बोर्ड ये हमने पेरिस कैसा आपने पेरिस की गलियां देखी हैं हाँ कैसी है पेरिस की गलियां हैं ये लाहौर है ये देखें सामने इतनी पुरानी इमारत ओ तो भाई ये सारे कदीमा की हाँ कोई यहाँ टूरिस्ट आए तो वो ये देखे ये वो इसको- पीछे हवेली देखे और साथ ये इधर भी कूड़ा जो है देखे ना ये इधर भी आए
इधर ट्राली लेके आए, गूं गड्ढा लेके आए, इधर रखे। हाँ मतलब यहाँ पे कोई डंपिंग के लिए कुछ सिलसिला हो। हाँ सिलसिला, उधर से फेंके, उधर जो भी घर वाले हैं ये सब है ना, वो लेके आएंगे, ठीक है, वो आन के उधर फेंके। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको खत्म कर ले। गली में भी कूड़ा उठाने वाला आता है कि नहीं आता? वो गलियों में भी आते हैं, वो पैसे देते हैं। वो जो पैसे लेते हैं हाँ। वो उठा के कूड़ा यहाँ छोड़ जाता है। वो छूट जाता है, वो लेके आएगा घर वाले को। यानी वो इधर गली से कूड़ा इकट्ठा करेगा सारे घर वालों से लेगा, पैसे लेगा, और ठीक है, हाँ। तो कूड़ा कहाँ छोड़ के जाएगा? वो इधर जाके फेंक जाएगा, वो फेंक जाएगा, वो ट्राली वाले आएंगे, वो ले जाएंगे, वो लेके जाएंगे, फिर ऐसा हो जाएगा। इधर भाई एक ट्राली बड़ी हो, गूं गड्ढा बना हुआ, इधर आ जाए, इधर आ जाए, बना है, जो भी लेके आए उधर फेंके, नीचे ना फेंके, उसमें फेंके, नीचे ना गिरे, वो ऊपर से कवर हो, बंद हो। ऊपर से बंद खत्म हो रहा चीज़ है। और ये तो पेरिस की ये गलियों में होता बच्चे है। हैं, छोटे छोटे बच्चे, गलियों के बच्चे हैं, सब इधर ऐसा खेलते हैं। सिस्टम तो पेरिस की गलियों में होता है। ये पेरिस की, ये भी तो पेरिस ही बना हुआ है ना। उसने बोला था ना पेरिस बनेगा लाहौर, लाहौर पेरिस बन गया बस। बन गया, हाँ कानों पे पेरिस मुबारक होए। ये सूरत हाल है। बुनियादी तौर पे मामला ये है कि लोग पहले से पैसे दे रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। आपके घर में, आपकी गली के बाहर जब कोई कूड़ा उठाने वाला आता है तो वो आपसे पैसे रेगुलर चार्ज करता है, लेकिन वो लाकर यहाँ इसको डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हम टूरिज़्म से पैसा कमाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सी इमारतें हैं, बहुत से स्पॉट्स हैं जहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। ये दिखाइए अगर मेरा कैमरामैन, ये एक पुरानी हवेली है और मुझे इसके अंदर जाने का भी इत्तेफाक हुआ है। जब कोई टूरिस्ट आएगा वो इस हवेली को देखने आएगा, जिसके अंदर एक खूबसूरत म्यूज़ियम है। यहाँ बाद औक़ात फिल्म, ड्रामा, गाना भी शूट होता है, ठीक है, उसे पूरी दुनिया देखती है। लेकिन जब वो टूरिस्ट आकर इस गली को क्रॉस करेगा और वहाँ कूड़े का ढेर देखेगा और फिर इस इमारत को देखेगा, तो जहाँ वो इस इमारत के बारे में लिखेगा वहाँ वो हमारे हाल के बारे में भी लिखेगा। भाईजान कैसे मिजाज हैं? ये क्या हिसाब किताब निकाल के बैठे हैं? काम शाम कर रहे हैं, इसमें एक पैसे और लिख लें, 2000 रुपया कूड़े का, वो भी प्लस हो रहा है जी। वो टैक्स लग गया अब आप पे। आप कारोबार करें और कूड़ा बाहर फेंकें और आपसे पैसे भी ना लें, है वही? नहीं जो चाहे लें जी, हमारा बंदा क्या कर सकता है। तो सांस लेने पे भी टैक्स है, सांस लेने पे भी? वो भी टैक्स समझने लग और नहीं यार, सांस मुफ्त है आपके लिए। बहुत मुश्किल। हर जगह भी सांस लेने सरकार आपसे पैसे ले रही है कोई? तो जल्द ही ऐसा हो जाएगा, कोई ना कोई लागू टैक्स हमारा। क्यों इतने मायूस हैं आप? तो वो पाकिस्तान की यूथ हैं जिसने इस मुल्क को उठा के ऊपर ले जाना है। नहीं, अभी यूथ खुद नीचे बैठ गई। क्या एज क्या है? एज क्या है? मेरी 25। 25। तो पाकिस्तान में जितना पोटेंशियल है, 60-65% तो हम 25, 30, 35, 40 साल के लोग हैं। दुनिया में इतना पोटेंशियल कहीं नहीं है। अब कोई नहीं, जितने टैक्सेस लगा दिए कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। कारोबार ही बिल्कुल तबाह हो गया। क्या करते हैं? जॉब कर रहे हैं, कारोबार था पहले, अपना बिजनेस था। लेकिन अपना बिजनेस था? हाँ, कब? अपना ये तकरीबन कुछ मंथ पहले ख़त्म किया है। क्यों? अपने कारोबार की बात ही कोई नहीं। नहीं, अब तो कारोबारी हालात ही नहीं फिर, इस वजह से मजबूरन जॉब स्टार्ट करना पड़ी है। लेकिन जॉब में भी कोई मतलब कारोबार को उठाने के लिए तो PDM 2 की हुकूमत बनी। मलकाए पंजाब को जानते हैं आप? हाँ बस ही जा रहे हैं यार। आप उसको कह रहे हैं, आपको तो ख्याल करें ना थोड़ा सा। मलका नहीं है? कह रहे हैं मलका नहीं है वो? आप अपने अल्फाज पे गौर करें ना जरा, चचा, आप क्या कह चचा जो हैं वो बादशाह पाकिस्तान, बिल्कुल भतीजी मलकाए पंजाब। वो आंखें बंद है, उनकी नज़र आना उनको बंद हो गया है मगर नहीं ऐसे नहीं। और उनकी जो सेंस भी है वो सब मुद्दा हो गई है कि हिस्स बेहिस हो गए मलका भी और चाचा जान भी। ना ऐसे ना कहें। बिल्कुल ऐसे अपनी मलका के बारे में कोई ऐसे कहता है? तो जब ऐसा हो जाए तो फिर ऐसा कहना भी तो। कौन सी रियासत में मलका के बारे में ऐसे कहा जाता है? तो ऐसी कौन सी रियासत है जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता? जब कहीं जहाँ भी ऐसा कोई काम होता है, वहाँ पे जुल्म होता है या उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है, तो कौन सी ऐसी आप कहते हैं कि रियासत है जहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाता? मलका पंजाब आपके लिए रोज़ मीटिंग्स करती हैं मीटिंग ताकि महंगाई कम हो। नहीं वो आपको नहीं पता। वो मीटिंग जो करती हैं वो इस बात की करती हैं कि हमें किस तरह फ़ायदा होना है, क्योंकि मीटिंग में हमारे जैसा तो कोई उन्हें बंदा क्या होता ही चाहिए? वो पहले ही अमीर खानदान, बस वही तो उनको और अमीर बनना है ना उनको। और अमीर बनना है। वो किस चीज़ की कमी है? घर भी बड़े, जाती फिर उम्रा आप वो में, घर और बैठे, दौलत भी तो और फिर क्या शोहरत कर रहे भी, हैं? सारा वो कुछ तो तो आप- उनका आप देखिए बरून मुल्क में है, इधर तो वो कारोबार करने आए हुए हैं, उनके बच्चे उधर, आपकी खिदमत उनका करने। पैसा उधर, बहुत खिदमत हो रही है जनाब। उनका पैसा उधर, बैंक अकाउंट उधर,
इधर उनका क्या है? इलाज उन्होंने कराना हो तो वो भी उधर जाते हैं। वो कहती हैं मेरी कोई जायदाद ही नहीं है। तो इधर है वाकई सही कह रही है ही कोई नहीं जायदाद। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि उनकी कोई जायदाद है ही नहीं इधर। और आप हमारी मलका से नाराज़ हो गए हैं? नहीं, नाराज नहीं है हम तो। जो उनके जो स्टेटस अपनी रियासत में कोई अपनी मलका से भी नाराज़ होता है? यही हमारे नसीब खराब है कि वो हमारी मलका है। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप इस रियासत के बादशाह बन जाएं? वैसे अपनी रियासत जो हमारी है कोई इलेक्शन लड़ें? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ रियासत जो होती है हम अपनी रियासत के बादशाह हैं। जो हमारी वो तो छोटी सी रियासत है ना, वो तो आपका घर हो गया, बच्चे, आपकी अहलिया को बहन भाई, वो मैं कह रहा हूँ ना, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं है। तो बददुआएं जिसने लेनी है वो फिर इलेक्शन लड़ ले। क्या ख्याल है? बददुआएं नहीं, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रातों को जागते हैं। आपको पता है कि सर प्राइम मिनिस्टर सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, नहीं तो 7 उनको बजे चाहिए ना कि वो आगे इनके रात लेट नाइट तक काम करते हैं, 3-4 घंटे सोते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको चाहिए ना इधर विजिट करें, इलाकों में आए, लोगों के घरों में जाके देखें उनके क्या हालात हैं। बच्चे जो है वो दवाई नहीं ला रहे। अब मलका जो है वो रियासती अमूर चलाएंगे, आपके घर आके विजिट करें? नहीं ना, वो क्या चला रही है रियासती में? वो तो बैठ के कैलकुलेशन कर रही है बस के जो है वो हमारी सैलरियाँ कैसे पूरी होनी है, हमारी जो गाड़ियों का पेट्रोल है वो कैसे पूरा होना है, और जो हमारे जहाज़ों का खर्चा है वो कैसे आगे जो उन्होंने वो ऐलान किया दूध का वो कैसे पैसे आने हैं, वो भी सारा उन्होंने उधर बैठ के सोचना है। मीटिंग में तो वो आपको पता है चाचा भतीजा होती तो होते हैं। उन्होंने साथ सोचा है कि अब आपके मोहल्लों में, गलियों में, दुकान के बाहर, घर के बाहर सफाई कैसे करनी है। तो वो उस मीटिंग का और सोचने का नतीजा ये निकला है कि आप पे नया टैक्स लगना है। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हैं वो मलका है हमारी, मैं आपको यही तो वैसे फैसले मलका ही करती है। कि वही तो बता रहा हूँ आपके को। उधर बैठ के सिर्फ वो यही प्लान करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है, और जो है अपने जो तो आपने 8 फरवरी को आपने वोट दिया, बड़े मियाँ साहब आपके लिए परेशानी में बाहर आए, आपके हालात ठीक करने के लिए बाहर से आए। अब देखें ना कि लंदन में एक बंदा हो, इलाज करवा रहा हो, वो बीमार थे, लेकिन आपके लिए उन्हें आना पड़ा कि यहाँ मामला चल नहीं पा रहा था। वो अंदर है, हमने जिसको वोट दिया वो बाहर नहीं है। तो जो बाहर वाले अंदर आए हैं वापस मुल्क में, उनका क्या करना है? असल बता क्या बात है कि सारा वोट तो मिला उसको, ठीक है। आवाम से जो है वो बदला लिया जा रहा है कि वोट उसको क्यों दिया, तो वोट हमें क्यों नहीं मिला। ये कूड़ा टैक्स बदला है? नहीं, ये सारे बदले कूड़ा टैक्स क्या है? कूड़ा टैक्स क्या है? कौन कौन सा टैक्स हमें तो पता भी नहीं होता कि थोड़े भाईजान आप मलका से नाराज हैं, तो अब आप क्या बातें कर रहे हैं? तो कह रहा हूँ आप जाएँ उसके बाद हैप्पी रहे आप। हाँ जीते रहें, सलामत रहें। ये अवाम के जज्बात हैं, ये अवामी सूरत आ रहा है। शख्स इस खड़े पर बैठा है, उसने 1500-2000 जो कमा के लेके जाने हैं, उसकी मजबूरी है कि अगर उसके बच्चों का दूध के पैसे भी आप टैक्स में निकलवा लेंगे, आप और कई तरह के टैक्स लगा लेंगे, रिलीफ कहाँ मिलेगा? रियासतें टैक्स लेती हैं, लेकिन बुनियादी मकसद ये होता है कि आवाम की रिलीफ के लिए, फलाह के लिए काम किया जाए। सर कैसे मिजाज है? क्यों बैठ गए, क्या हुआ? क्या करें, पति है नहीं, गर्मी है और काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बाहर गलियों में बैठे हैं। बिजली नहीं है? बिल कितना आया? बिल आया, एक भी पक्का लगा हुआ है, तो 6,000 रुपये बिल आया हुआ है इस पक्के का। इस पंखे का 6,000 बिल आ गया है। तो बिल में टैक्स देखें कितनी तरह के लगे हैं? टैक्स तो माशाल्लाह वो तो यूनिट तो कुछ होता नहीं, सारा बाकी टैक्स ही है इसमें। एक और इजाफा कर लें उसमें, एक और नया टैक्स माशाल्लाह, ये भी खुशखबरी अच्छा है। कूड़ा टैक्स सुन लीजिए, ये बात भी पहुंच गई हम तरफ। मेहरबानी आप लोगों से मियाँ साहब, मेहरबानी। मेहरबानी क्या नहीं है उन लोगों को, क्या कह सकते भाई साहब। जंगल में जब रहना हो ना, जंगल में शेर की गुलामी करनी पड़ती है। ओए, जंगल में जब रहना हो ना, शेर की गुलामी करनी पड़ती है हम लोगों को। ये गुलामी हम लोगों ने करनी पड़ रही है। ये टैक्स डाल रहे हैं, ये चाहे टैक्स डाल रहे हैं, ये तो ये छत पे हम लोगों के ऊपर डाल सकते हैं। ये तो नहीं तो रियासत टैक्स तो लेती है ना, इसमें क्या नई बात है? रियासत टैक्स लेती है तो बाकी चीज़ें भी तो सहूलतें भी होनी चाहिए, ले ले। सड़कों पे टैक्स मना थोड़ी है। तो पहले यहाँ को सफाई करने के लिए आता है इधर? सफाई करने पे ये आपके सामने ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं आता। ये बाकी ये खड़े हुए, हम सब सारों से पूछे। सुबह एक बंदा नजर आता है बेचारा, उसके बाद ट्राली भी होती है और गाड़ी भी होती है उसके पास, वो जो कूड़ा उठाती है उससे। ठीक है, वो बेचारा वही कितने कहाँ तक करे, वो एक वो भी थोड़ा बहुत कर लेता है जितना उससे होता है, बाकी वो हफ्ते बाद 150 रुपये देना पड़ता है कूड़ा उठाने के, घर से लेके जाने का। यानी हर हफ्ते अगर आपने 100 दिया तो 400 रुपया वो हो गया। हाँ जी। अब आपके घर पे 300 रुपया और लग जाएगा टैक्स। 700 हो गया। 700 हो गया। हाँ जी।
ठीक तो है। भाई जी ने पता क्या, अब हम काम करें, मैं रेडी वाला हूँ, मैं लड्डू बेचता हूँ, अब मेरे घर का बिल आ गया 18,500 रुपये बिल आ गया। आपने लड्डू भी 100 रुपये का कर दिया होगा। नहीं जी भाई, लड्डू 30 रुपये का बेच रहा हूँ। और छोड़े 100 रुपये का कर दिया होगा और आपने। भाई जी 100 का करो, रेडी उल्टा देंगे अगले, वो कहेंगे एडी महंगाई का दी आ गई। नहीं, ये तो ये बात आ जाती है जो पीछे से टैक्स बढ़ा लेते हैं कि चलो कहते हैं कि हम सहूलतें लाएंगे, ये नहीं सोचते कि टैक्स के साथ और क्या क्या चीज़ें बढ़ जाती हैं साथ में। बाकी हम लोगों की ज़रूरत है, हम लोग भी चीज़ें बढ़ाते जाएंगे उसमें से। ये लड्डू बेचारा फैसिलिटी इनको लोगों की है, ये अल्लाह के घर में मेहमान आए हुए हैं, इनको ना बिजली का बिल देना, ना पानी का, ना गैस का, ना पेट्रोल का, किसी चीज़ का इन्होंने बिल नहीं देना। और इनको जब रिटायर होते हैं इनको 100 रुपये जगह मिलती है। किसको? ये सियासतदान बैठे हुए हैं, ये ऊपर बैठे गरीब आदमी होता है, क्या बातें कर रहे हैं। नहीं, सियासत गरीब कैसे है, ये सियासत रिटायर होते हैं जब इनको 100 रुपये जगह मिलती है, फिर इनके बच्चे भी आगे चलते रहते, खाते रहते। हम तुम मर के गरीब वाले प्राइवेट जो है, ये गवर्नमेंट मुलाजिम तो अल्लाह के घर मेहमान है, हमें हफ्ते में 4 दिन जाना दफ्तर, हाजिरी ला के बगैर 26 दिन ला दी हाजिरी मेरी हाजिरी ला दी। तो आप भी कोई ऐसी नौकरी ढूंढे ना। और भाईजान सानू मिलती नहीं, असी कितने जाइए सानू रेडी क्लोन नहीं दे रहे हैं तो दफ्तर से नौकरी लगा रहे हैं। आपने भी कोई नान फिर 30 रुपये का कर दिया है। नहीं, नान हमने कहाँ से 30 रुपये कर दे, वही 20 रुपये का दे रहे हैं हम लोग। अगर आपने 20 रुपये से महंगा बेचा तो बड़े मियाँ साहब चेक करने आ जाएंगे। माशाल्लाह, ये तो सर 6,000 रुपये जेल में करके गए हैं, बाकी 20 रुपये का नान है, और कहना है भाई तुम 120 ग्राम क्यों नहीं रखे। हम तो यही चाहते हैं कि मियाँ साहब आ ही जाए यहाँ। हम 20 रुपये के बेचने के बाद भी फिर भी 6,000 रुपये की चलान करके गए हमारा। 6,000 रुपये का चला। हाँ, फिर भी करके गए हैं। हम तो ये आके तरस रहे हैं कि मियाँ साहब यहीं से मियाँ साहब आ ही जाए किसी दिन के एक आधा नान उसको भी दे दे कि मियाँ साहब टेस्ट कर लो इसमें क्या है। मियाँ साहब आएंगे उसका टैक्स भी हम देंगे, वो जो गाड़ी पे बैठ के आएंगे। हाँ, वो गाड़ी भी तो चलनी है ना, उसमें पेट्रोल भी तो डालना है। एक ब्रेक लें, आपको मज़े ला दिखाते हैं। कैसे मिजाज हैं? शुक्र है अल्लाह का। तो टैक्स वैक्स भर रहे हैं टाइम पे सारा? सब कुछ भर रहे हैं जी। फाइलर हैं कि नहीं? फाइलर हैं कि जी, नहीं? जी। फाइलर हैं आप? वाह। अब आप पे एक और टैक्स भी लग गया है। वो कौन सा? कूड़े का। कूड़े का भी लग गया है। कूड़े का टैक्स नहीं देना? देना तो पड़ेगा भाई, अब बिल नहीं दे रहे हम, उस पर टैक्स नहीं दे रहे हर तरह में एक टैक्स और। अब मेरे पास बिल नहीं है, मैं आपको दिखा सकता कि कितना बिल आ गया? 10,000 रुपये बिल आ। 10,000 रुपये? हाँ जी। तो क्या क्या चलाया आपने घर पे? घर पे ना फ्रिज है, नहीं है ना कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ पंखा चलता है और लाइट चलती है, या पानी वाली छोटी मोटर है जो, बस और कुछ नहीं है। मोटर भी छोटी? हाँ जी, वो छोटी सी। और मैंने 3 महीने से पहले भी नहीं भरा था क्योंकि रक्शे से नहीं काम चल रहा था। नहीं है? नहीं है। अब अगले महीने वो 10,300 रुपये या 10,500 रुपये आएगा, उसी में आएगा बिल में। इजाफी डालने, टैक्स तो देना हाँ है। जी, टैक्स इजाफी। मैडम सीएम का पैगाम है, वो बड़ी सख्त गुस्से में है कि जो सारा आपने लाहौर गंदा किया हुआ है और पूरे पंजाब में आपने कूड़ा फैलाया हुआ है, अब टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा जी, अब क्या करें, मजबूर हैं हम, कुछ समझ तो आ नहीं रही, क्या करें अब। कितनी देर चलाते हैं गाड़ी? गाड़ी हम सुबह 8 बजे से निकलते हैं तो 8 ही बज जाते हैं वापस घर। कितने को पैसे बन जाते हैं? ये 2-3 हज़ार, उसमें भी वो गैस का खर्चा निकालते हैं तो 1500 बच जाता है। हाँ जी, 1000-1500 बच जाता है। 1500 में से 500 निकाल दें कूड़े के टैक्स का, वो तो भरना पड़ेगा। फिर दूसरे भी टैक्सों में ही निकाल दें, खाना तो नहीं सकते ना, फिर खाना तो नहीं खा सकते, फिर आटा वगैरह ये वो चीज़ें तो नहीं ले सकते। ये कहाँ से लेंगे? ये देखें, अब यहाँ पे फल की रेडी है, तो फल की रेडी के इर्द गिर्द जो है वो आप देख लें, दिखाएं इधर आए, इस तरफ आएँ, ये दिखाएं। तो शाम को जब ये जाएंगे तो सारा कुछ यूँ यहीं बिखरा पड़ा होगा, और सफाई करके जावांगे, सफाई करके ले जाते हैं रोज़। पक्की बात है, देख लें, आप आके चेक कर लें शाम। अगर आप रोज़ उठा के ले जाते ज़रूर, तो फिर आप पे टैक्स नया तो थोड़ा लगता, नया टैक्स लग गया कूड़े का। लेकिन हम तो शाम को उठा के ले जाते हैं डेली। घर पे लगेगा 500 रुपये, 700 रुपये, 2000, 5000, कारोबार पे भी लगेगा टैक्स। तो चाहे आप उठा के ले जाएं, लेकिन टैक्स आपको देना पड़ेगा। सही
सारी दुनिया देगी तो हम भी देंगे ना, टैक्स लगा तो सब ही देंगे। अच्छी बात है, ये तो फिर टैक्स लगना चाहिए। और लग तो रहा है, कोई बात नहीं, सभी देंगे। आप तो अमीर आदमी हैं। हम तो पहले ही दे रहे हैं, पहले कौन से घर से उठाते हैं तो नहीं लेते, घर से तो घर पे कोई आता है कूड़ा उठाने वाला? आते हैं। उन्हें कितने पैसे देते हैं? 200 महीना। 200 महीने का पहले से दे रहे हैं। हाँ, तो कितने मरले का घर है? 2 किराए का घर है। कितनी जगह है? एक कमरा है, थोड़ा से किचन है बस। अच्छा, उसमें 300 रुपये और डाल लें। और तो कोई बात नहीं, 500 हो जाएगा। कचरे का भी कुछ बना ही रहे हैं वो, क्या? वो खाते वगैरह बना रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। गवर्नमेंट को ये जब टैक्स लगा रही है तो उन्हें पता है ना, ये कचरे का जो इतने ढेर उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ ना कुछ बना ही आगे लेके जा रहे हैं। वो देखिए वहाँ सामने इकट्ठा हुआ पड़ा है, उधर आगे भी इकट्ठा हुआ पड़ा है। उठा के ले जाते हैं, बहुत उठाते हैं, उधर से भी उठाते हैं। फिर लोग फेंक देते हैं। कैसे मिजाज हैं आप? तो बड़े गौर से कुछ सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सोचन मेरे दुश्मन, मैं की सोचना पुत्र, वक्त ही इंज दा जा रहा, सरबराही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਲੁਟੇਰੇ। ऐसा तो नहीं, ਕੌਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ही नहीं किसी ने सोचा। नई हुकूमत बनाई है आपके लिए भाई साहब। और नई हुकूमत ही आके वेख लवे पुत्र, ये 8 फरवरी को आपने वोट दे के नई हुकूमत बनाई है, बेड़ा गर्क हो गया। मगर आपने टैक्स देना है अब, कूड़ा टैक्स नहीं देना। किन्ने टैक्स देने पे होर कड़े लाने जी कूड़े का? कूड़े ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ। उधर पूरे पंजाब में लग गया है। ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਸੋ अच्छी बात है। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹਿਸਾਬ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੂੜੇ ਦਾ ਮਾਲ ਵੀ ਖਾਣ। कूड़े का माल भी खाया जाएगा। ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ, ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਹਰ। ਅਸੀਂ ਬੋ ਫਲਾਈ ਭਾਟੀਓ ਬਾਹਰ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਕਦੀ ਭਾਟੀਓ ਬਾਹਰ? वहाँ बड़े बुरे हालात हैं, वहाँ खड़ा नहीं हो सकता बंदा। तो फिर तो सरकार कह रही है कि अब हमारे खजाने में पैसे ही नहीं है। खा गए सारे खजाना, ਇਹਦਾ ਕਦਾ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ पाकिस्तान है, ये कुर्बानियाँ ना लेता है। हमने तो खून बहाया ये मिट्टी लेने के लिए। ऐसा कितनी एज होगी आपकी? कितनी होनी चाहिए? मुझे को लगता है कोई 60 प्लस है। नहीं, अगे ही निकलो ज़रा, और 70 और थोड़ा निकलो। तो मुझे एग्जैक्ट भी बताएं ना। रिजल्ट पहलवान बंदे हैं असी, मैं वही देख रहा हूँ। आप फिट आदमी है फिर भी। शुक्र है अल्लाह का। तो कितनी नंबर के? आराम नहीं ना खाई था, हलाल मेहनत करके। बड़े ज़बरदस्त पैर गले पे ने मेहनत कर करके। तो आपने तो इतनी हुकूमतें बनती गिरती आती जाती देखी हैं, किस दौर में हालात सबसे बेहतर थे? अयूब खान उस दौर में? वाह वाह वाह। और उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? जवानी में थे, लड़कपन में थे? पूरे जवानियाँ ही थी, अखाड़े में। हाँ, सियाने था बड़े तगड़े। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर भुट्टो साहब आए, वो छो बेनजीर आई 2 दफ़ा, छो दफा करो। मियाँ साहब ने आपको एटमी कुव्वत बनाया। दफा करो, कुछ भी नहीं होए। क्या सूरत हाल है काम शाम की? बिल्कुल ठीक है, हमारा काम तो पूरा फास्ट है। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं ऐसा? बिल्डिंग मटेरियल का काम है हमारा, आपको पता है बारिशें हो रही हैं तो हर बंदे को ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम कर रहे हैं। ठीक है। हमने तो सुना कि बिल्डिंग मटेरियल वाले पिछले को 2 साल से बड़े परेशान हैं। लोग लोग शायद परेशान हो, लेकिन हमारा काम तो अल्लाह का शुक्र है। आपका अच्छा चल रहा है? बिल्कुल शुक्र अल्लाह। ठीक है। तो फिर आपने एक टैक्स अब और नया ऐड कर लें अपने खर्चे में, कूड़े का। देखिए जी, पाकिस्तान की भलाई के लिए है, जो भी है हम लोग नहीं समझ रहे। अगर आप दुनिया में देखें, हर दुनिया का मुल्क तरक्की इसीलिए करता है कि वो टैक्स देता है, हर चीज़ में टैक्स देता है। बिल्कुल ठीक जब है। हमारे ऊपर कोई टैक्स लगता है तो हम अजानें देनी शुरू कर देते हैं। टैक्स देंगे तो मुल्क चलेंगे ना। तो यही करते रहेंगे, वो चोर है, वो साद है, वो कश्मीरी है, वो आराई है, ये बातें नहीं है। तो जहाँ आप घर पे रहते हैं वहाँ को मोहल्ले में आता है कूड़ा वगैरह उठाने के लिए? आते हैं, बिल्कुल, रोजाना सफाई होती है। उन्हें को पैसे देते हैं आप? कभी वो ईद के ईद हमसे ले लेते हैं, वैसे नहीं लेते हमसे। नहीं, लोगों से तो हर महीने पैसे लेते हैं। नहीं लेते, किसी से नहीं लेते, उसमें गवर्नमेंट पैसे देती है। ये कौन सा मुल्क है जो गवर्नमेंट भी पैसे दे, हम भी उनको पैसे दें? हाँ, ईद को अपनी खुशी से हम उनको दे देते हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़ी तरक्की करेगा अगर आप सब मिलकर इसको चलने देंगे तो। हमने कहा रोका है, हमने रोका है, चाहे कोई आए, पीटीआई आए, कोई आए, हम क्या कहते हैं, ये हो गया जी, वे हो गया। 1 साल 1.5 साल में कुछ नहीं होता। किसी को चलने दें, 5 साल नहीं, कोई आएगा, सारी जिंदगी नहीं आएगा। इन्होंने इसीलिए इमरान खान को नहीं चलने दिया, वो 3 साल बाद फिर वो हीरो बन गया। इसको भी 5 साल चलने देते, पता चलता। गलती की, चलने देना था। चलने देते शायद इसका नाम भी ना रहता। जो नवाज शरीफ के साथ गेम हुई है ना, अल्लाह किसी के साथ हुई है। नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ी तो गेम फिर हो गई। क्यों हुकूमतें ले ली? वफाक में भी, पंजाब में भी। नवाज शरीफ ने नहीं ली। नवाज शरीफ एक गैरतमंद इंसान था,
कौन है जो अपनी पार्टी का वज़ीर आज़म बनता है? कौन है? वो नहीं बना, वो नहीं बना, उसने कहा मैंने नहीं बनना। मलका पंजाब कौन है? वो मलका पंजाब नहीं है, वज़ीर आला पंजाब है, काम कर रही है मैडम, वो आपके लिए मलका होगा। मैडम CM वो खादम है, खादम लोगों के काम कर रही है। मैडम CM जो है, हाँ जी, वो लोगों के वो काम नवाज कर रही शरीफ है। से अलग है। वो पंजाब में काम करेंगे। वफाक की बात आप लहदा करें, वफाक की पंजाब बात आपकी नहीं है, पंजाब की आपकी है। आप वफाक की बात ना करें। वफाक आपसे अलग है। नहीं, उधर से जरदारी साहब भी है ना वफाक में, वो तो सदर है। सारे गवर्नर उनके बैठे हुए हैं। गवर्नर तो आईनी होता है, सदर वो इंतजाम है ही नहीं उनके पास कोई, सारा कुछ ही उनके पास है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो नवाज शरीफ और मुस्लिम मरियम लीग की नवाज बहुत अच्छा काम कर रही है। आप 12 प्रोग्राम लेके आई है, सोलरों के साथ, घर के साथ, इतने प्रोग्राम यूसी में अपने अपने कागज जमा कराएं। ना मिलेंगे ना तो 6 माह बाद आगे पीछे आगे बात कर लेंगे। जैसे वो आटा मिला था वैसे ही, जैसे 50 लाख मकान, 1 करोड़ जैसे आटा मिला नौकरी था मिलनी थी ना, वैसे नहीं। जैसे 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी मिली थी वैसे ही सोलर मिलेगा। नहीं, सोलर मिलेगा इंशाल्लाह। जैसे रमजान में आटा मिला था मिलेगा इंशाल्लाह, मिलेगा इंशाल्लाह। जैसे रमजान में आटा मेरिट में मिला था, कोई करप्शन बता देना। नहीं बना हुआ था किसी का बेनजीर फॉर्म तो नहीं मिला, बात खत्म। आटा मिला था आपको, उनका फॉर्म नहीं बना होगा। जा क्यों रहे हैं? आपको आटा मिला था? बिल कितना है आपका? भाई बात सुने मेरी बात। 10,000 आ गया। को फॉर्म बनवाए अपना। 1500 का तोड़ा 850 में कैसे मिल गया? मैं ये बताइए ना मुझे। किसको मिल गया भाई? अभी मिल रहा है, अभी तो आपको तो मिलना ही था। 900 तोड़ा मिल रहा है, दुकानों में मिल रहा है। एक बात करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी प्लीज हुक्म करें, ऐसा हुक्म करें। बात यह है कि कोई भी चीज़ खरीदता है कहीं से और कोई चीज़ खरीदता है और गवर्नमेंट उसको टैक्स हमें देना पड़ता है। कोई भी चीज़ खरीदे, यार ये कैसा इंसाफ है कि 500 रुपए की चीज़ खरीदे 1500 रुपए टैक्स दें। एक कूड़े का टैक्स भी डाल लें उसमें, वो छोड़ दें। तो वो छोड़ दें। बिजली में 1500 रुपए टैक्स है, 500 रुपए बिल है। वो भी आज बात हुई, क्या बात हुई? 50 उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। आपको कम नहीं आएगा। मेरी बात सुनो। कम आएगा बेटा, कम आएगा बेटा। टीवी देखा करें बेटा, गुस्सा नहीं करें, उनकी बातों पर यकीन ना करें। गुस्सा ना करें। गुस्सा नहीं, आपका बीपी हाई हो गया है। बीपी आपका हाई हुआ है। मैंने अभी आपको अल्लाह खैर करे को बीपी आपका हाई हो गया, मैंने आपको लेके जाना है। मेरा बीपी है ही नहीं बेटा, इजी हो जाए। मेरा बीपी है ही नहीं होता, मेरा नॉर्मल बीपी है। एक चीज कोई भी खरीदा हमने उसमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है। टैक्स देना है। लेकिन ये तो नहीं है कि जितने की चीज खरीदे उससे 4 गुना ज्यादा टैक्स टैक्स हो जाए। ये कैसे- और एक ये टैक्स कैसे आप और था? शामिल कर लें, कूड़े का टैक्स शामिल कर लें, क्योंकि ये जो तमाशा है वो जारी है।